اس کا کل جو ہے سوچ دو اور جو ہے آئین یہ سلسلہ ہے تہذیب کا کہ دوسرے حق کو بھی جب کسی حق کو منایا جائے اس کی شکل کیا ہوگی. تو اس سے دو تک کا بتا دیا گیا تھا. آئین اور ڈھائن آئین اور ڈھائن جس طرح پہلے کا قید سے قید نقطہ تھا اسی طرح اس میں بھی نقطہ ہی کا فرق ہے. شکل کا کوئی فرق نہیں. آئین اور ڈھائن جو تہذیب اپنا حق ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی تین شکلیں ہیں جو آپ کے سامنے صاف صاف ہوتی ہیں. اب اس کو کہاں ہم کس طرح بنائیں گے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے پہلے کے لیے یہ پہلا شکل ہے. اس میں اس طرح سے سات جوڑ دیں ایسے یہ پہلا شکل بھی ہے. اس کا اثر ہے دوسرا دیکھیے یہ ہے یہ اوپر آیا ہے اوپر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر کا حق اس میں اب اس میں آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں. اصل میں مقصود یہ ہے کہ اس آئین میں کیا ہوا ہے جیسے مان لیجیے آئین اس دوسرے شکل میں بھی اور تیسرا جو شکل ہے یہ دیکھیے یہ بیچ میں آتا ہے جیسے یہ ہو گیا. اب اس کو ایسے لے جائیں گے یہاں یہ ہو گیا صحیح. سمجھا یہ ہو گیا صحیح. تو یہ جو ہے ہمیشہ بیچ میں یہ جب بھی آئے گا بیچ میں آخر میں یا شروع میں نہیں آئے گا. تو اس طرح سے اس کا تین شکل ہے اور تین طرح کا آپ کو بتایا گیا کہ پہلے جو ہے اس میں حق جوڑے نیچے کی طرف سمجھا. اور مان لیجیے کہ یہ اس میں جو ہے یہ صاف جوڑے تب یہ پہلا ہی شکل ہے جو آسانی پہلا ہی شکل. دوسرا شکل دوسرے شکل میں اوپر سے آئے گا. اب دیکھیے بینک پہلا شکل ہے بینک اس کو اس طرح سے جوڑیں گے. یہ سب اوپر لے گئے یہ کا اور یہاں یہ جائے گا. اس کے بعد یہ دوسرا ہے یہ دوسرے شکل ہے. اوپر سے اس کو ایسے مان لائیں گے بھول اس کے بعد ہاں یہ دیکھیں یہ جوتا ہے یہ جو آخر میں ہے وہ آخر میں یہ جوتا ہے. تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس میں جو حق ملے سمجھا یہ ہو گیا ڈائریکٹ پھول پانی. اب اس طرح سے بہت سارا اس کو آپ ملا سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. وہ جب آپ کتاب کا نہیں تھا آپ کو پتا چلے کہ کہاں ہم زبانی پر تھوڑا سا یہ ہے. جیسے دیکھیے یہ اثر لکھا ہے اسی کو دیکھیں
लिखते हैं, यही पहला शक्ल। पहला शक्ल जैसे समझा। अब दूसरे शक्ल आमिर हो गया, आमिर हो गया, आरिफ हो गया। ये ऊपर गया है इसलिए इसमें जो भी खत मिलेगा वो ऊपर से आगे ही, और ये नीचे की तरफ आया इसलिए इसका है नीचे की तरफ। ये दो आपको अब तीसरे में तीसरा ये है जैसे रजा, रजा जैसे लिखते हैं तथा। इस तरह से ये मिला है। अब जैसे लिखते हैं बुगदार, बीच में आया बुगदार, तो इस तरह से ये तीन हर्फ है जिसको आप मिलाएंगे जहाँ मिलना। अब इस तरह से आपको किताब पढ़ने के बाद मिलेगा कि कहाँ जैसे ये पहला ये है पहला शब्द, इसी में हम इस तरह से बॉल जोड़ेंगे कि ये औरत है। इसको ऐसे जोड़ेंगे आप अकल में ये पहले शक्ल का, ये भी पहले शक्ल समझा। जैसे इन जैसे आप बोलते हैं विंडो इन, ये जैसे इरफान, अर्श, खुश, इस तरह की चीज है जो ये पहले शक्ल में मिला है। इस तरह से अब आबिद, आफील, आमीन, मुनीर, देखा ये। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि बीच बीच पर जो आइन है दूसरे शक्ल में या तीसरा शक्ल में कह सकते हैं। अगर आप ग्रुप कहते को जोड़ेंगे जो हमेशा आपके लिए इस्तेमाल होता है,
یہ تیسرا ہے، لیکن ملانے والے کا یہ دوسرا ہے. اس میں زیادہ تر الف کو ہی ملایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اوپر ہے. یہ سمجھ میں بات آ گئی کہ اس طرح سے ہم اس کو لکھ کے بناتے ہیں. اب آئیے یہ غین، جیسے یہ غین ہے آیا غربت، غاب، غسل، غل. یہ پہلا شکل ہے، غربت، غور، غسل، غل. یہ غین کا جو ہے پہلے شکل کا استعمال کیا ہے. آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں. اب دوسرے شکل میں دیکھیں، جیسے دوسرے شکل کا ہے غار. غلام، امید، حالت. اس طرح سے غار، غلام، غلیل، غارت. یہ دوسرا جو شکل ہے جو عام طور سے الف میں لام میں یہ ہے. جیسے آپ لکھتے ہیں من، اس طرح سے لائیں گے اور یہاں سے اس کو لائیں گے. جیسا آپ کہتے ہیں اسٹور گل، یہ گل اس میں بھی. تو اس طرح سے ملانے کا طریقہ جاننا اور سمجھنا بھی، تب کہیں آپ کا جو ہے یہ ملانے کا جو کام ہے وہ صحیح ہوگا اور خوبصورت بھی ہوگا. اب دیکھیں یہ ملانے والا غین ہے جو بیچ میں آتا ہے، جیسے نام، اسی کو اس طرح سے ملانا ہے بالغ، بالغ، صحیح، صحیح، بالغ، صحیح. تو غلط، تو غلط، موغل، شغل. یہ دیکھیے آپ، یہ سب بیچ میں آیا ہے، یہ بیچ میں آیا ہے. سمجھا؟ یہ اتنا صحیح. تو یہ آپ کو عین اور غین دونوں کا جو ہے تین شکل میں ملانے والا ہے. تینوں شکل کو لکھ کر کے سمجھا کے آپ کو بتایا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے جب آپ غور کریں گے تو آپ کے لیے ملانا آسان بھی ہو جائے گا. اور جو
दिया भी नहीं जा सकता है और अपना आदमी के पास जुबानी गाना भी नहीं होता है, लेकिन मिसाल के तौर पर जब आपको भेज दिया गया जब इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगा। अब इसको फिर बार बार लिखने से ये फायदा होगा कि आपको कैसे लिखना है, वो आइन तो आप लिख ही चुके हैं। आप पहला सेकंड लिखिए, पहला सेकंड ऐसे ला, दूसरा जो है ऐसे ले, तीसरा ऐसे, ये जो है नीचे आया, नीचे आया है इसलिए नीचे ही आया, समझिए। जैसे आपको बताया कि सूर्य रंग का ऐसे हो रहा है पहले भी, दूसरा बताया कि इसको ऐसे आया है, इसी ऊपर से जो आया वही लिख दीजिए, नाम दीजिए और देखिए इसको आदमी, ये आगे बीच में मिलाने वाला है। आपको जैसे बताया कि देखिए आप तीनों शक्ल आपके सामने है, तो ये है कि आपको थोड़ा सा लिखने के लिए मस्त की जरूरत है, मस्त आपको करना पड़ेगा कि इसको किस तरह से मिलाया जाए, जैसे मैं कैसे मिला वो सही नहीं है। ये आपको बताता है ये दाल को मिला है, इसमें भी हिकमत है। ये दाल किस तरह से लिखेंगे कि बेदाल हो, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो बेले हो, ये है। इसमें अगर हम सिर्फ यहाँ से ऐसे ही बोलेंगे ये बेरे हो, बेदाल नहीं हो, ये बेरे हो, और इसी को अगर हम दाल बनाएं यहाँ से मान के चलो इस तरह बोलें ये बेदाल, याद रखिए ये दाल, इसको दाल बनाने के लिए बीच में है जगह खाली हम करना पहले छोड़ दें और ऊपर में इसको रेल इसको ऊपर से हाँ इस वक्त नहीं है, एक बात बीच में आ रही है, तो ये आप इस तरह से समझ गए ना, इसी तरह से आप लिखेंगे बार बार लिखने के लिए आ जाएगा और लिखने की खूबसूरती में ये तीनों फिर लाइन लिखेंगे, ये हो गया लाइन, हो गया लाइन या, तो अब आप कुछ भी देखिए, एक बात हमेशा याद रखें कि आप लिखने के लिए जाने शक्ल जाने चाहे नहीं, आप जो है बोलते जरूर हैं। कौन है जो गुरूर नहीं बोलता, कौन है जो गैरत नहीं बोलता, कौन है जो वसूल नहीं बोलता, कौन है जो गैरत नहीं बोलता, कौन है जो गुलाम नहीं बोलता। इसी तरह से औरत है, अमीर है, आम है, अलामत है, बालिग है, नाबालिग है, ताबे है, इस तरह से थी मना है, इस तरह कौन नहीं बोलता, बोलता सब। सिर्फ ये है कि ये आज जो आपको बताया जा रहा है ये लिखने के लिए और पढ़ने के लिए बताया जा रहा है कि आप जो लिखते हैं, आप जो बोलते हैं उसको लिखने के लिए भी जाने और ये भी जाने ये क्या चीज़ है, कैसे लिखा जाता है, इसकी शक्ल क्या है, ये दरअसल आपको बताया जा रहा है ताकि आप पढ़े लिखे कि इसे आ सके, पढ़े लिखे में आपको सुना जो ये ज़रूरी है। तो इस तरह से आइन 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 आइन, और ये आइन और आइन का शक्ल भी आपके सामने है। तो इस वक्त आपके सामने आइन का जो है 4 शक्ल है। अब आपको पहले बताया है कि ये जो हुरूफ है ये हमेशा आखिर में आएगा और अकेला है। जैसे आप लिखेंगे दिमाग, दिमाग हमारा, जैसे लिखेंगे खुराक,
बनाया, इसी तरह से ये आपके में आएगा और अकेला हो मुकम्मल, जैसे भाग लेते हैं। अब इसको आप समझ गए कि कैसे ये लिखा जाएगा, इस शक्ल से लिखा जाएगा, फिर इस शक्ल पर बताते हैं। जो भी आप लिखेंगे ऐसे इसको है यहाँ से ऐसे यहाँ यहीं से यहाँ कैसे करें, इसको यहाँ से इस तरह से ये आइन कर सकते हैं। इसमें मेहनत नहीं है, थोड़ा बहुत मेहनत तो जरूरी है, इसमें नहीं है। ये मिलाने वाला मैं अब क्या है, अब ठीक है बना हुआ है, इसके पहले हरा मिलेगा, इसके बाद भी मिलेगा, इसके अक्सर जैसे लिखते हैं ना, ये मीन बनेगा और यहाँ से ये आय का सकल ये आय माने ये हो जाएगा माने। तो इस तरह से आप समझ कि आय आय इस तरह मिलाया जाता है, इस तरह लिखा जाता है और इसमें क्या ऐसे हिफाजत कुल 4 शक्ल है, एक मुकम्मल है, 3 मिलाने वाले और 3 मिलाने वाले का 3 शक्ल कहते हैं। 3 शक्ल में आपको बताया गया कि ये पहला शक्ल जैसे मैंने बताया आपको बताया आपको पानी बताया आपको बताया फिर मिलना बताया। इसी तरह इसमें जो है दायरत दायरत ये आपको इस तरह से बताएगा कि इस तरह से मिलाया जाएगा, मिला इस तरह से मिलाया जाएगा। ये इस तरह से मिलाने के बाद आपके समझ में बात आ जाएगी कि ये मिलाने के लिए कितना आसान तरीका बताया गया और अच्छे से बताया गया। तो आप याद रखें कि ये नहीं करके शक्ल है जो मिलाने वाला है और ये तीनों शक्ल मिला करके आपको अलग अलग बता दिया गया मिसाल के तौर पर कैसे मिलता है। इस तरह मिलने के बाद आपके लिए पढ़ना बहुत आसान है। और एक बात ये भी जानना है कि दूसरा कोई तरीका नहीं है जिसको अभी ये कर सकते इस शक्ल को इस शक्ल में, इस शक्ल को इस शक्ल में मिला दे, ऐसा नहीं दूसरे किसी का तरीका है नहीं।
कैसे देखिए, जैसे लिखते हैं ये हम लिखा है इसलिए तो आप ये देख सकें कि आपकी बिंदु है ना और मुकम्मल ना ये बिंदु शक्ल जो सब्जी का जो भी शक्ल आए जो भी है पर वो मुकम्मल इसमें आपको कुछ कटौती करने की जरूरत नहीं है, ये इसके बगैर इसके लिए मुकर्रर है। आप देखिए अरब पहला शक्ल मिला आती दूसरा शक्ल मना तीसरा शक्ल मना उसी तरह पैदा पहला शक्ल है आपकी दूसरा शक्ल है वाली तीसरा शक्ल और तपा ये आइन आखिर में आया है ये मुकम्मल दिमाग ये मुकम्मल तो इस तरह से आपके लिए कितना आसान हो जाता है और ये बार बार देखने से आता है बार बार और करने से एक मरतबा लिख लेने से ये नहीं होता और देखिए पहला शक्ल है ये दूसरा शक्ल है ये तीसरा शक्ल है ये और इसके बाद पहला शक्ल है हमारे मंजर से शाम को लगा दूसरा देखिए तीसरा देखिए मना समझा ये हुआ चौथा देखिए और बाकी बाकी देखिए अब आपकी समझ में बात आ गई कि किस तरह से मिलाना है किस तरह से मिलाना है औरत पहला शक्ल तीन दूसरा शक्ल मीना वाव पहला बाकी दूसरा वाली तीसरा इस तरह से बार बार लिखने से बार बार पढ़ने से देखने से जहन में बात हटेगी और लिखने के लिए आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको लिखने के लिए सिखाएंगे लिखने के लिए लिखने के लिए लिखने के लिए ये इस तरह से ये आप लिखने वाला है ध्यान सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको लिखने वाला शक्ल मालूम हो जाए शक्ल मालूम हो जाए और फिर ये कि इस शक्ल में कौन सा हाथ मिलाना है कैसे मिलाना है वो आ जाएगा फिर आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कितना आसान मालूम समझ में आएगा ये शायद पता आपको भी नहीं होगा कि ये कितना आसान पढ़ने वाली चीज़ कितना आसानी से इसको लिखा पाएगा शायद आपको भी अंदाज लिया बात है सिर्फ थोड़े सी मेहनत
की ज़रूरत है किताब आप सुनेंगे और अभी आइन और वैन का जो आपको बता रहा है मैं कहना चाहता हूँ कोई भी किताब निकाल कर चाहे कैसी भी किताब हो, आप उसको पढ़ लें कहीं कहीं ही छूटेगा कहीं कहीं छूटेगा नहीं कहीं कहीं छूटने वाली जगह है कहीं कहीं नहीं समझने वाली है यह पूरी ज़िंदगी ऐसा हो इसलिए आप इसका गौर कीजिए समझा आप लिखते पढ़ते नहीं मेहनत करते नहीं आप कुछ नहीं पाएंगे ये है फिर से देखिए हम आपको ये बताते हैं आप अब ये समझ लीजिए एंड क्लास ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये चार कोई भी आपसे पूछे आप बता दे सकते हैं कि आगे का चार एक है जो मुकम्मल है वो अकेला रहेगा और बाकी नहीं। तीन है जो मिलाने वाला है एक शुरू में मिलेगा एक जो नीचे जाएगा दूसरा है जिसमें ऊपर से आए और तीसरा है जिसमें दोनों तरफ से हटती है तीसरा जो शक्ल है इसमें दोनों तरफ से हटती है चाहे जैसे देखिए आप देखते हैं उर्दू में रुकू रुकू ऐसे लिखते हैं मुकम्मल है पर और सब भी आखिर में रहेगा बुराई पर लगा जिसके जो है वो समझ में नहीं ये क्या है ऐसे आएगा ऐसे आएगा अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं अरब भी लिख सकते हैं तूफान भी लिख सकते हैं अर्श भी लिख सकते हैं और फरमान ये अर्श हो गया इसी नुकसान को मिटा देंगे तो उससे हो जाएगा जिसका आजकल बहुत चलन है दुनिया में उसका अर्श से ज़्यादा चलन उसका का हो गया तीसरा है ये आइन ये देखिए ऊपर गया जाहिर है कि ये ऊपर का हाथ नहीं मिलेगा वैसे हो सकता है या आलिम हो गया इसमें नाम भी जोड़ देंगे तो इल्म हो जाएगा जैसे देखिए आप ये आलिम हुआ अब फिर इसमें मीम यहाँ जोड़ देंगे आलिम इल्म हो समझा ये इल्म हो ये दूसरा है ये इसके आगे पीछे दोनों तरफ हाथ मिलता है कहीं ऐसे ये सीन हो गया इसी को ऊपर ले जाएंगे इसमें लाएंगे बाकी ये हो गया ऐसे और देखिए ये यहाँ मिलाया है इसी में सीन ला के मिला दिया ये बीच में हो गया और उसी में ये मिला दिया सही हो गया इस तरह से जो आखिर का शक्ल है वो बीच में आएगा और उसके दोनों तरफ अर्थ जोड़ा जाएगा चाहे जो भी लिखेंगे आप दोनों तरफ इसको बताएं क्या रुकू अर्श इल्म सही रुकू अर्श इल्म सही अब लाइन से आई अब ये लाइन को देखिए दिमाग हो गया समझा ये ऐसे में ये गुरु हो गया ये लाइन किस तरह से बनाएंगे ऊपर से डाउन ला करके जोड़ेंगे नीम देंगे गुलाम हो जाएगा ये देखिए एक तो ये बाली हो गया एक देखिए
थे गैन नाम हा तो गुल्लक ये बीच में आया। तो इस तरह से ये सब का मिलने मिलाने का अपना एक मुकाम है, एक जगह है। और अगर इसको अपने मुकाम से हटा करके लिखने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, ये सही नहीं है। ये हमेशा याद रखें कि जिसका जो मुकाम है इसको आपको वहीं लिखना पड़ेगा, चाहे आप जिस तरह से लिखें, जितना भी मेहनत करना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि बीच वाले लाइन को शुरू में लिख दें, आखिर में लिख दें, नहीं हो। मुकम्मल लाइन को बीच में लिख दें, नहीं हो। आप शुरू वाले आयन की शक्ल को बीच में लिखेंगे, नहीं हो। बीच वाले आयन की शक्ल को आखिर में लिखेंगे, नहीं हो। और जिस लाइन में दोनों तरफ का मिलता है उसको आप आखिर में शुरू में कहीं भी लिखेंगे, वो सही है। इसका जो मुकाम है उस मुकाम पर आपको लिखना पड़ेगा और इसके मुताबिक ही आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। तो आप हमेशा याद रखें कि ये सब चीज़ ये है मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके जहन में बात आती जाएगी। आज इंसान जब किसी चीज़ पर मेहनत करता है तब उसके जहन में बात आती है। ये बात गलत है। एक इंसान जो मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसके जहन में वो बात डालता है, उसका रास्ता भी डालता है और बाद में काम करता चला जाता है। आप भूल देखेंगे तो एक चीज़ जैसे वादी लिख दिया, वैन आखिर में है, तो अब आप सोचेंगे कुछ दूसरा हो तो आपको दूसरा दिमाग में आ जाए। इस तरह से जब आप पढ़ें, इस तरह से देखिए, ये वैन हो गया, ये भी वैन हो गया, ये भी वैन हो गया, ये भी वैन हो गया, समझा? ये भी वैन हो गया। तो हमेशा याद रखें ये आप चाहें इसको फिर से लिखें आप, समझा? फिर से लिखें जैसे हमने इससे पहले लिखा है, ये लिखूं तो मुकम्मल आइन आएगा। फिर लिखा था आलू, अरब और मना। तो इस तरह से आपको सब लिख करके बताया। फिर जैसे लाइन दिमाग लिख के बताया, फिर गुरूर लिख के बताया, फिर गाफिल लिख के बताया, फिर तुगलक लिख के बताया। तुगलक तुगलक देखिए, तुगलक ये आया लाइन गुलाम मुकाम तुगलक, ये तुगलक हो। इस तुगलक को आप जो लाइन बीच में दिया गया है, दूसरे आयन को इस जगह आप फिट नहीं कर सकते, दूसरे आयन को इस जगह आप नहीं बता सकते, किसी कीमत पर नहीं बता सकते, समझा? किसी कीमत पर आप नहीं बता सकते। बैठा के देखिएगा तब आपको लगेगा कि किस तरह से इसकी सेटिंग है कि ये दूसरे जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको आप इसी तरह से लीजिए कि जिस तरह बोलने के लिए जुबान है, आप नाक और कान से बोलने का इस काम नहीं कर सकते, किसी कीमत पर नहीं कर सकते। नाक का काम है देखना, आप जुबान से ये काम नहीं कर सकते। कान का काम है सुनना, आप कान से नहीं कर सकते। यानी अल्लाह ताला जिस जिस्म के जिस हिस्से को जिस काम को भी बनाया है वही आप कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। इसी तरह से ये साहब ज़ुबान गौर और फिक्र के बाद, सोच समझ के बाद जिस तरह इस्तेमाल किया है, आप इसको कभी कर सकते हैं। जैसे कहीं जो बीच में आया है जिसको आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझा कि नहीं? इसी तरह से ये शुरू का लाइन है जिसको आप आखिर के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये जाए कि ना इसका इस्तेमाल करें। और ये जो है जैसे ये आप इस तरह से लाएंगे
اور نام ملا دیں گے، جس کو لوگ وڈ ہی پڑھیں، کچھ دوسرا نہیں پڑھیں، لیکن یہ نام میں ملنے والا شکل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جو اس کا بنانے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، جس کی سیٹنگ ہے، اس کے حساب سے غلط ہے۔ تو پڑھے گا لیکن وہ دراصل لکھا جاتا ہے اس طرح سے، یہ اوپر آیا یہاں سے نام ملا ہے۔ آپ دونوں کے شکل پر ہی غور کر سکتے ہیں، شکل پر آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو ملایا گیا ہے اسی کو ملنا چاہیے، اس کو نہیں ملا، اس لیے کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ خوبصورت ہے۔ اسی طرح سے دوسرے حرف کو بھی دیا جیسے اب اس کو ملا یہ گھائن آپ کو لکھا ہے، آپ کی سیٹنگ ہے۔ اب دیکھیں دونوں کو لوگ ضرور ہی پڑھے گا، پڑھنے والا دونوں کو ضرور ہی پڑھے گا، لیکن آپ کو اپنے اندر کے تمیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں نیچے جو ضرور لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے، اس لیے نیچے جو ضرور میں رے ملایا گیا ہے یہ غین رے میں ملنے کے لیے نہیں، رے ملنے کے لیے اوپر ملا ہوا ہے، جو اوپر دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے اور نیچے خوبصورت نہیں لگتا۔ اس طرح اس کو جو ہے نام میں ملایا تھا خوبصورت نہیں لگتا تھا، اسی طرح سے اس غین کو رے میں ملایا تو خوبصورت نہیں لگتا ہے، یہ لگتا ہے۔ تو یہ تمام اجاز کرنے والے بڑے غور و فکر کی بات آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کوئی بھی زبان کتنے دنوں میں کتنے محنت کے بعد کتنے انسان کی محنت اور خواہش سے یہ چیز تیار ہوا ہے جو آپ سے پہنچا ہے۔ یہ اس دنیا کا دستور ہے، کوئی بھی چیز نسلاً بعد نسل نسل وہ اسی طرح سے جاتی ہے، ایک نسل آنے والی نسل کو سب چیز بتاتے جاتے ہیں کہ یہ اس کا طریقہ ہے۔ ایسے یہ بتایا کہ یہ دوسری نسل میں جا رہا ہے، دوسری نسل جب آئے گی وہ یہی بتائے گی یہ بہن کا 4 شکل ہے، یہ بہن کا 4 شکل ہے، اس میں صرف ایسے ملے گا، اس میں یہ نہیں ملے گا، یا اس میں اور یہ تو آپ ملا ہی نہیں سکتے، کیسے ملائیں گے آپ ملا ہی نہیں سکتے، اس لیے یہ غلط ہے، یہ دیکھنے میں غلط لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ تو اس طرح سے نسلاً بعد نسل اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی تعلق سے ہم تک بھی یہ کتاب کے ذریعے سے استاد کے ذریعے سے بات پہنچی تو جانتے ہیں، اور پھر ہم لکھتے ہیں تاکہ آپ سمجھیں اور جو ہے بہت پہلے کے وقت جو ہے قریب ہو چکا ہوگا سمجھنے کا۔ یہ اہم ہے، دیکھیے ایک طرف سے لکھے آئین حکومت عرش اور علم بالغ عین کو آخر میں بتایا آپ کو کہ آخر میں سمجھا ہوتا ہے وہ عرش، عین کا پہلا شکل ہے یہ ہو گیا۔ عین ملانے والے میں سے تین میں سے جو پہلا شکل ہے وہ رے میں ملایا عرش ہو گیا، دوسرا ہے عین کا شکل اس میں الف ملایا عرش ہو گیا، تیسرا ہے میم ملایا اور نون ملایا عین جو بیچ میں آتا ہے وہ مانے ہوتا ہے، اور ایک صحیح لکھا جو بیچ میں ہے، آپ
ملتا ہے عین کے پہلے بھی اور عین کے بعد بھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سعید میں عین سے پہلے سین ہے اور عین کے بعد بھی ہے۔ اس میں دیکھیں عین کے پہلے نون ہے، اس کے بعد نیچے جو ہے پورے نون عین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس طرح سے یہ سب کا استعمال ہے۔ اب آئیے آپ جیسے غین ہے، جیسے لکھتے ہیں ہم لوگ مرغ، پورا غین ہے، مرغ پورا غین ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں غرور، پہلے شکل کا ہوا، دوسرے میں جیسے لکھیں گے اور تیسرے میں لکھیں گے مغرب۔ دیکھیے 4 شکل آتے ہیں، کانٹے پر لے لکھتا ہے۔ ہاں تو پہلا مکمل شکل والا بول بتایا آپ کو، غرور یہ شکل بتایا، اور یہ شکل بتایا، مغرب یہ شکل بتایا۔ تو اس طرح سے 4 حروف ہیں، 4 شکل ہیں عین غین کے، چاروں کو بتا دیا گیا۔ اس طرح سے آپ اس کو لکھیں گے پڑھیں گے اور انشاءاللہ جانتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر آپ دوسرا شکل آپ کو 2 شکل آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح سے آپ موبائل پر بنے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کم سے کم وقت